tester. So that means I'm definitely going to create a main method here. Okay, so from package B, I will access things inside package A. So water class is तो there, and जाइए ना this ईशान class के is साथ. public in nature. Okay, cool. And we already know public. If something is public, you can access it anywhere. There is no restriction, no constraint. Just access it. So let's try water, water. हम्म. Okay, have you guys noticed this one thing? Um, we are inside which package? Com, pack, access, specifier, dot B, where this water class is present inside access specifier A. So as soon as I write this string, water, it gives me error. What it says, water cannot be resolved. So you have to import this class this way. Yes. See, line 3, because I have used that control space button. So by default, Eclipse picks that class from that package. So what it says, com packs access specifier dot a dot water. That's how import works. So import is a reserved keyword of Java, which is helps us to distinguish like from which package this class is imported. There is a high chance that in your project there are like thousands of Java files and maybe two Java files names are similar. So how you will distinguish? By checking its import, like from which package that particular class is imported. So this is really critical thing. And believe me, guys, if you are a junior or senior person, it happens sometimes because when we start actually working in a project, you might import wrong class. It will happen, not intentionally. By default, it happens. You are just doing it because you are in the flow. You're thinking about logic and stuffs. So you won't be picking okay which thing. So as soon as you add 10 libraries, maybe all 10 libraries giving their own implementation of the same class. So you have to be very cautious from which package I have to import. Why I'm telling you, because this after this class tomorrow we'll start with exception handling in core Java and then collection and then IO packages. So there we will see this package stuffs. Package is really critical. So make sure you are very crystal clear about this concept. Okay. So we're done with this import, then new water. Since water class is public, so we can access it in this class, and I can even access stuffs as well from that class. Color. Done. Nothing special. We have done this, but we never used two packages. We just created two classes. But now we are in two different classes, but in different package. So we can see the impact of access specifier because I have clearly mentioned it affects the package level visibility. Okay, so of course this will also execute because there's no red line. It's colorless. Great. So unless you have public class, you can exit. What about other stuffs? So let's do one thing. I'm going to create one private memory here. So private int amount, or let's say price. We're talking about here price of water. Now this variable is private. So um, Dipin, you tell me, can I access this price inside this element tester here? No, sir. Okay, fine. Let's create one more class inside the same package where the water class is present. I'll create one more class. Um, let's say fire. I'm just creating some elements. And here I have a method public void um, let's say mm, I don't know what to call the method. Suggest me some name, guys. I want to create one method inside the fire class. Suggest involve. I don't know why you guys mute yourself. Are you sitting somewhere in the stadium or some noise space is there? Why you guys are not unmute and have an interaction with me while I'm teaching? That's I don't know. If I was in your place, my mic was unmuted all the time till the class gets end. Okay, it's your choice, guys. Whatever works. So, okay, we need to create a method. Let's say extinguish. Not sure about the spelling. I have to cross check extinguish spellings. Okay, so we need to extinguish the water. So let's say I need to use water, right? So what I will do, I'll create water class first of all, since I need to extinguish this fire. Now I'll say water. Before even using water, I need to purchase that water. So I need to get the price of that water, right? So I need to say price.
वाटर यहाँ पे पब्लिक फाइल Dheeraj, will this work? Line 7, which I have commented. into water price into water price. Sir, it may be possible, sir, it work. We are talking सर right now. हाँ बोलो. सर ये प्राइवेट में है क्या? सर एक बार वो सेकंड वाला ओपन करिएगा सर. कर तो रखा है, वाटर क्लास पे है हम लोग. प्राइस ये रहा, प्राइवेट है. नो सर, इट्स नॉट. It won't. Okay. Not working, right? Reason is simple. As soon as we add private keyword anywhere inside the class. By the way, you cannot make your class private, but the contents in your class, they can be private. So Yes sir. let's put this as well here. Public can be used anywhere, right? There is no restriction. So that's quite easy to use. But as a good developer, you need to understand where you want to put restrictions. You cannot just access it. You cannot allow anyone to access your stuff. Private can be it will be same except I'll put except here. Except Java class. Okay, so you cannot make your class private. Think about if your class is private, how can you access it? So no. Again, you can use private anywhere with variables, with methods, but you cannot say private class water or private class fire. So I have used this private with price variable. That's the example, and it will work without any issue. Likewise, I can create let's say taste method. It's tasteless, right? So if I want to access this test method outside of water class, I won't be able to do this. Let's comment this out and let's say water is the reference. So water dot taste method, and getting the error. What it says, the method taste from the type water is not visible, right? It is clearly saying this. We cannot access this variable. What about this message? Price says the field water dot price is not visible, all because of our restrictions. So you cannot access fields, methods outside of class if these are private. So I hope this is also clear. If any other doubt or any concern, please ask We me. cannot access field or method Public and outside of. private both are straightforward. Sir, No, yes. sir, in the first class, sir, you are importing the access specifier. Sir, it is needed to import. Where? Uh, sir, water.java classes, my sir. Water or Java. So where I have imported? First class. Sir, you are importing the access wh- specifier. Sir, Where I've imported? Tell me the line number. sir, second one, I think. Water class. इसमें नहीं है सर, सेकंड वाले में एलिमेंट सर किसी में उसमें तो, आपने इंपोर्ट किया था उसमें एक्सेस उसमें स्पेसिफायर उसमें सर करना वो पड़ेगा ना. हाई उसमें हाई ये वाला सर. क्यों नहीं करोगे? वो था डिफरेंट सर पैकेजेस. वही तो मैं. अच्छा तू क्लास करके जाएगा एक्सेस खाना कैसे खाने दोगे? क्यों नहीं वाटर खाता क्लास है इस छोड़ पैकेज के अंदर है और हाँ आप अपना एलिमेंट टेस्ट लिख रहे हो पैकेज बी के तूने अंदर. बोला है तुझे तो बी खाना के अंदर खाने अगर चीजें एक्सेस करनी है तो, और वो हाँ चीजें उसके तूने अंदर है ही कहा नहीं, तो कहाँ से लाओगे? बिना खाए रहता है थिंक अबाउट. आप किचन में हो और कुछ बनाने की सोच रहे हो, तो आपके पास सारे मसाले हैं, सारा सब्जियां हैं, पर सिलेंडर नहीं है, तो सिलेंडर कहीं से मंगाना पड़ेगा ना, तो इंपोर्ट करोगे उसको. तो घर में तो नहीं सिलेंडर. एग्जाम्पल पिक किया मैंने ओके सर, रैंडमली. दो दो तो डिफरेंट पैकेजेस हैं. ओके सर, समझ गया मैं. डिफरेंट तो है ए और बी. यस सर, यस सर, स्टार्ट ही इसलिए ऐसे किया इंपोर्ट था. करने की पर. हाँ, हमने स्टार्टिंग से 2 पैकेज बनाया ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि पैकेज लेवल विजिबिलिटी होती है. अभी तक मैं पैकेज लेवल पे गया भी नहीं हूँ.
वी आर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक हमने देख लिया, पब्लिक तो हम इनिशियली यूज करते हैं, पब्लिक में समझाना नहीं है। प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शंस है, एज सुन एज यू यूज देम यू नीड टू मेक श्योर दैट दे कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास। तो मेथड हम प्राइवेट कभी बनाते नहीं है, बहुत रेयर चांस है, पर कंस्ट्रक्टर और फील्ड्स मोस्टली दे आर प्राइवेट इन अवर प्रोजेक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेशन। और अगर हमें कहीं पर कुछ डिजाइन पैटर्न फॉलो करने हैं तो वहाँ पे हम प्राइवेट बनाते हैं। तो प्राइवेट अगर यूज करें, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, प्राइवेट कैन बी यूज्ड anywhere. So when I say anywhere, it means with fields, mhm, fields, methods and constructors. सर Yes. बट हम तो प्राइवेट को इनकैप्सुलेशन में गेटर सेटर के थ्रू दूसरे क्लास में यूज करते थे। तो गेटर सेटर पब्लिक थे ना। यस सर, गेटर गेटर बट फील्ड तो प्राइवेट थे सर। नहीं, वो पब्लिक बनाया लेकिन था उस मैंने। केस में सर, उस केस में शायद दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है ना, तो इसलिए हो यस यस जाता है वो। हाँ। भाई तुम लोग प्राइवेट कुछ होने के अलग। बावजूद भी हो जाता है। तो विद इन द क्लास हो सकता है, वो आउटसाइड तो हो ही नहीं सकता। विद इन क्लास यूज यस सर। करो, प्राइवेट है विद इन द क्लास को भी यूज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। क्लास के बाहर यूज हो ही नहीं पाएगा। और विपिन जो तुम कह रहे हो भाई, वो भी देख लो कि हमने यहाँ पे ये बनाया था, पब्लिक पब्लिक सारा पब्लिक था यहाँ पर, ब्रीड। क्योंकि कल मुझे प्राइवेट पब्लिक के चक्कर में नहीं पढ़ना था, तो सारा कुछ पब्लिक था, क्लास पब्लिक, फील्ड पब्लिक, मेथड्स भी पब्लिक, और एक्सेस भी कर लिया। ठीक है। तो प्राइवेट तो एकदम आया नहीं, प्राइवेट तो हमने जस्ट अब बनाया है प्रॉपर वे में समझने के लिए कि प्राइवेट अगर बना रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं होगा क्लास के बाहर, दैट्स इट, फुल स्टॉप, उसमें इफ बट है ही नहीं। अगर प्राइवेट है तो विद इन द क्लास हो सकता है, जहाँ पे लाइन 3 से लेके जितना ये हाईलाइटेड एरिया है इसके विद इन आप प्राइस और टेस्ट को इनसाइड द क्लास यूज कर सकते हो, नॉट आउटसाइड ऑफ इट, लाइक वी ट्राइड हियर इनसाइड फायर एंड वी गॉट द एरर। तो इसको पिक कर लेते हैं। ओके, सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, पब्लिक है तो एक्सेस करो, प्राइवेट है तो नहीं कर पाओगे, डन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई डाउट हो जरूर बोल देना, अभी हाँ मत बोलना कि मुझे समझ में आ गया, नहीं आया तो 10 बार बोल दो नहीं आ रहा, हम तरीका ढूंढ लेंगे समझने का। समझ गए सर, समझ गए। चलो बढ़िया। ओके, public private, as I said, quite straightforward and easy to understand. Let's move to next keyword. And धीरज यहाँ पे जो भी तुमने कहा था लास्ट बताने के लिए वो थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, समझो उसको। तो प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड, हाउ प्रोटेक्टेड वर्क्स। डिफॉल्ट करते हैं पहले, मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ, प्रोटेक्टेड थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। तो अगेन वाटर क्लास में जाते हैं, वाटर क्लास में हम एक मेथड बनाते हैं, टेस्ट कलर, और क्या बनाया है इसमें, सजेस्ट करो भाई कुछ। टेस्ट हो गया, कलर, देन वाटर टेस्ट प्राइस कर टेस्ट, दीजिए सर, प्राइस। प्राइस वो तो हमने वेरिएबल बना दिया, कुछ और है। टेस्ट कलर। टेस्ट कलर प्राइस सर मनी ब्रांड बना दीजिए, और किस कॉस्ट। ब्रांड से आ रहा है। ब्रांड का, हाँ ब्रांड भी सही है सर। चलो ठीक है, ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे पब्लिक प्राइवेट कुछ यूज नहीं कर रहा, I'm leaving it blank, and if anything you will see डिफॉल्ट। right like this way, so that means it's डिफॉल्ट। default, है ना, it's default। ओके सर। Since no specifier is used, so it its डिफॉल्ट access ऑटोमेटिकली। is default in tick sense। Okay, clear, without any, fine। Let's see the accessibility. That's how we define or declare default stuffs। Third keyword लेते हैं हम, come on, default, काम करते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। Okay, so now we have a method brand which is default in nature. Let's try to use this in fire class. The fire class is present in the same package. So let's say public void name, auto brand name,
Camel case, water, brand name, that's fine. And let's again see, it's not a good weight, but I'm repeating stuffs. Again, creating instance of water. And then I'll say water dot brand. Yep, no issue. It is working. I'm able to access it. And if I want, I can execute it by main method. Since I don't have a main method here, so I'm leaving it. So idea is I am able to access it, right? So let's pick this. Access हो रहा है, that we have to focus. Rest of the thing, leave it. Different class. Sir, in this case, sir, both are in the same package. That's why, sir, you are able to access. Huh? Correct. Default आपने बताया था ना कि same package use हो सकता है. So that's proved. अब पैकेज भी चेक करते हैं कि पैकेज लेवल पे क्या होता है. This is one class, this is another class. Fine. And we are able to access this brand, which is default here. Okay. Fine. Now what? Let's go beyond the scope of the package. So inside package is fine. Within the, of course, we are within the method. Sorry, within the class we can access it. There's no if but that's quite rare to see that one method is calling another in your Pojo classes. But okay. So within the package is fine. We can access it. Let's go to different stuff. The tester. So we already have a instance of water class, and color was public. It can be accessed. Let's try to call water dot brand, and if I try to write this, Dheeraj, see, Yes, sir. if we are in default, if we are using default, we cannot use it outside of package. Default means package level scope, full stop. Fine. जो तुमने पैकेज लिखा था, सॉरी जो प्रोटेक्ट लिखा था वो एक्चुअली डिफॉल्ट है वो. ठीक है, मे बी नेम लगता है सिमिलर. ओके, पैकेज प्रोटेक्टेड लिखा है तो पैकेज लेवल पर नहीं. Default can be used anywhere. It has a package level restriction. Done. Okay, so that's how it works. It again, default can be used anywhere, but inside the package. So within the package you can use anywhere. मतलब कि सर हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं करना अगर पड़ेगा. दूसरे जैसे नहीं करना नहीं पड़ेगा. नहीं. अच्छा देखो, सेम पैकेज में ही यूज, डिफॉल्ट का सर हम सेम पैकेज में ही यूज करेंगे. क्लास फायर डिफॉल्ट कर दी मैंने. ओके सर. है ना. अब नाउ फायर क्लास इज डिफॉल्ट क्योंकि वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ. अब एज पर माय स्टेटमेंट इट सेज डिफॉल्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर बट इनसाइड द पैकेज. इसको ओनली भी लिख देता हूँ, just within the package. But inside the package only. वैसे स्टेटमेंट नहीं बना पर only तो और आ जाएगा. So package can be used anywhere but inside the package only. अब फायर क्लास है, मैं इसका इंस्टेंस तीसरी क्लास बनाता हूँ. लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास. फायर वाटर, व्हाट एल्स? I don't know, let's just know. And here creating one method, let's say some color, that's my method name. It's fine, it's private, doesn't matter. Idea is to check whether we can access fire class in different class or not. So fire class is here, and if something in private, not private, we can use it. So extinguish we can use, right? So you can see fire class is default, and that fire class can be accessed in the same package level.
So I can create instance of fire right inside this snow class. It can be accessed without an issue, right? It's working fine. Okay, let's try the same code. I'll copy this to save some time. Going back to tester class. This cannot be used. Let's comment this for above and pasting it. Now check what's happening. I am not able to access fire even. So that proves fire is within the package A and I'm trying to access it within package B. It's not allowed. What it says, fire cannot be visible to a type. If I try to import, there is no suggestion. So since fire is what? It's default in nature, so that remains within the package A only. You cannot access it outside of the package. So, yep, that's how it works. Let's put this. समझ में आया तो हाँ बोल दो, नहीं आया तो ये बोल दो. कंफ्यूजन शेप में बताना. समझ गया सर. ठीक है, अब ब्रांड पे चेक करते हैं ब्रांड को क्या बोल रहा है और ये भी एक्सेस नहीं हो पाएगा, कुछ है नहीं तो. ब्रांड का क्या बोल रहा है? द मेथड ब्रांड फ्रॉम द टाइप वाटर इज नॉट विजिबल. ओके, तो ब्रांड क्या है वाटर में? डिफॉल्ट है. Default सिंस है. इट्स डिफॉल्ट यू कैन नॉट एक्सेस इट. Access So outside of that's if so any what's actually method happening by using access or specifier? variable We are hiding the method visibility of the methods or whatever we are will using, variables or or constructors sometimes. So if something is default, default, that remains then within the we package. You cannot access it. cannot be Full outside stop. of Done. package that are Let's see the using protected. inside Protected of same confuses a package. lots of guys. Okay, so let's see. So what I'm going to do, let's use this no class and I'll mark this class protected. Again, protected can be used with classes, variables, methods, anywhere you can use. So क्या हुआ? अरे, sorry, not with the classes. See what it's saying? Illegal modify the class. Only public, abstract, and final are permitted. So not with the class, my bad, sorry. That just with methods. Variables and methods can be used. Protected, and here we are. Now the caller method is protected. Okay. So can we use this protected somewhere else? Maybe in water class. Let's try. Inside this brand method. Again, we are just checking whether we can access or not. So we are inside water class and want to access caller method, and that caller present inside snow class. So we need to create instance of snow first, right? That's how it works. First of all, you need to access stuffs. Done. So object creation is done, and snow class was default. So it's proved we can access it within the package. Done. Next, its method is protected. So snow dot caller. Okay, that's cool. So that means within the same package, protected method can be accessed. Right, it is working fine. Same, it's similar to default as of now. So let me put this here about protected. Protected is similar to default specifier. Fine. Protected is similar to default access specifier. And now let's see that and. It is similar to default specifier, and there's one more constraint. Let's try to access this caller method, which is protected, outside of the package, inside this element tester. And can we create instance of snow inside tester? Manan, can we create instance of snow class inside element tester? No, sir. Reason? Sir, because protected can be used within the package. है? मैंने कब कैसा? Protected तो अभी है नहीं class. I'm talking about can we create object of snow class inside element tester? No, sir. हाँ, reason तो बताओ फिर. No तो सुन Sir, लिया. sir, ये default है, sir. Access modifier. हाँ, ये default है ना. We don't have any specifier, right? Okay. So ठीक है. So if I try to create object of snow, no suggestion. Eclipse cannot see it. So just for sake of example, let's make it public, because public हमें पता है, and we are talking about protected keyword. So let's make our class public. Public done, so that means we can access it. And here we are.
as snow class in different package, so our Eclipse will import that as well. You can see import from this package, the class name is snow. Okay, it's done. So we are now able to create object. Let's try to access caller method snow dot caller. Oops, कॉल हो जाएगा. can't access it. So if I try to access it, it is saying the method caller from type snow is not visible. Okay, again, that protected method is not visible. That's why I said default. This protected acts as a default keyword. So it is similar, right? Package level, within the package you can use it. Outside of the package, it's not visible. Quite similar to default, but there is a twist. Anyone knows this twist? One thing you have to do, and then you can even access it outside of the package. Within the package, no doubt you can use it. Default, protected, both works in package. But when it comes to protected, if you do that twist, you can access protected variables methods outside of the package. But there's a condition. Anyone who knows about it? Quick. We are already like 8-10 minutes late. सर चाइल्ड क्लास बना के Right, Manan. Absolutely right. So you need to create a child of that class. That class is snow class. So let's create here a class inside package B. There it is, package B. I'll say snow child. Done. And extends snow. And here, you know one thing. Once you have a child class, that child can access parent stuffs, right? So let's go back to tester class. Let's create instance of snow child. Let's try this first of all. Snow child equals new snow child, and then snow child dot. I'm not able to access it now. Caller. Is this the right way? Manan, what do you say? Again, it says not visible. Now, what we are missing? I mean, this is the right way or not, first of all? Maybe we are doing it wrong way. What do you say? सर एक बार स्नो क्लास दिखा दीजिए. Snow class, here. So child class, Child class, simple, empty अभी. It's empty. सर हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, और स्नो Hmm. क्लास को सर हमें दूसरे वाले पैकेज में डालना पड़ेगा. Snow तो ऑलरेडी दूसरे पैकेज में ही है. पैकेज ए में है वो. सर हम बना चाइल्ड रहे हैं क्लास स्नो. को चाइल्ड क्लास दूसरे पैकेज में बी में है वो. कहाँ बना बताओ? ए पैकेज में स्नो है, बी में स्नो चाइल्ड है. नाउ नहीं सर सही है. उसमें अभी हमें वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उसके वो स्पेसिफायर्स वगैरह इस हिसाब से सेट करने पड़ेंगे कि हम उसे दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकें. अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं. यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है. तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाते हैं. लेट्स क्रिएट वन मेथड इनसाइड स्नो चाइल्ड. तो चाइल्ड आई डोंट नो, डमी, और लेट्स मेक इट पब्लिक. Idea was inside element tester, it was not allowing, right? Let's comment this as well. We were trying this way, snow. Let's copy and paste here. So snow का object बना सकते हो, not an issue. Can we call the caller? No. Still no. क्या missing है? सुपर कीवर्ड. Super keyword. चलो, let's try that as well. नेक्स्ट टॉपिक हमारे वही है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा. सुपर से ट्राई करते हैं. सुपर डॉट कॉलर. डन. So this is one way to access the method. Yes, so super dot caller, and this caller is actually from parent class. But ये तो cheating हो गई भाई. Access तो कर सकते हो, पर this is not a way
तो क्या करोगे इस केस में? चलो आई लीव इट टू यू गाइस. सुपर इज वन वे. It's one way to access protected data from parent. Okay. So homework is, here comes the homework, guys. Try to access protected members from the class in different package. Fine. ये ट्राई करिए. लेट्स सी कितना कर पाते हो. Okay, so that's it about access specifiers, guys. सबसे twisted है this what do you call that, protected, फिर default, then private, and then public is simplest. I can show you one more thing here. Let's सर search one image. Yes. सर प्रीवियस केस में सर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत तो नहीं थी वैसे. कहाँ पर? सर चाइल्ड क्लास में. ये यस सर. हाँ, वो तो इसलिए किया ना क्योंकि मुझे ये कॉल करना था, कॉलर जो काम नहीं करा, इसलिए बनाया था. मुझे जरूरत है नहीं, वो तो डेफिनेटली वो तो हम यूज नहीं कर रहे. वो तो कॉलर को कॉल करना था इस तरीके से दिखाने के लिए कि अगर हम ऐसे ट्रैक करें किसी मेथड के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं पा रहा. तो वो होमवर्क है, ट्राई करिएगा. देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको फॉलो कर सकते हो कि व्हाट आर द रूल्स अगेंस्ट द एक्सेस स्पेसिफायर्स. सेम पब्लिक एट द एंड. सो डिफॉल्ट है सेम क्लास सेम पैकेज सेम पैक के सब क्लास. सो इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. पैकेज लेवल. पब्लिक anyway doesn't matter, you can access it. Private just within the same class, simple enough. Public कहीं भी हो सकता है, private just within the class. Default within the package, जहाँ पे पैकेज है वहां तक से बात हो रही है. Protected कहाँ तक चल रहा है? Same class same package सब class same package नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज में भी सब क्लास पर सब क्लास चाहिए इनहेरिटेंस चाहिए. और वो कैसे, थोड़ा आप लोग पता लगाइए. बट डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास नॉट पॉसिबल. तो नॉन सब क्लास होगी, डेट इज चाइल्ड क्लास नहीं होगा तो वो एक्सेस हो ही नहीं पाएगा. तो हमने उतना तो कर लिया. स्नो चाइल्ड हमारा चाइल्ड क्लास है, दैट मींस इट्स अ सब क्लास ऑफ स्नो क्लास. बट हाउ टू एक्सेस इट, समथिंग इज मिसिंग, सो यू गाइस हैव टू फिगर आउट व्हाट दैट समथिंग इज मिसिंग. इट्स अ स्मॉल बिट ऑफ कोड, हो जाएगा वो भी सर्च. ठीक सर है. यस. सर एक बार इनके एग्जांपल दे दीजिएगा. किसका? सर अभी पीछे एक बारी जो इमेज आपको दिखाई है. अच्छा बताओ एग्जांपल क्या. सर जैसे ये सेम पैकेज नॉन सब क्लास या डिफरेंट पैकेज सब क्लास, इन सब के. इन कीवर्ड से पिक करिए, मतलब ये समझना है कि डायग्राम क्या बता रहा है ये. ये जो सेम क्लास सेम पैकेज सब क्लास इनके. हाँ, सेम क्लास मतलब विद इन द सेम क्लास जो हम क्लास बना रहे हैं. हाँ जैसे सर. कि वाटर क्लास है, तो वाटर कैन जो चीज लिखी हुई है वो विद इन, जैसे प्राइवेट है. अब ये तो सिर्फ विद इन द क्लास यूज हो सकती है, विद इन द सेम क्लास. सो ये रहा वो प्राइवेट सेम क्लास, बाकी सबके नो है. तो अगर प्राइवेट फील्ड है और उसकी हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ सेम विद इन द सेम क्लास यूज हो सकती है. यस सर. तो प्राइवेट तो सबसे सिंपल हो गया. प्रोटेक्टेड, हाँ बोलो. सर इनके एग्जांपल सही थे मुझे, जैसे सेम पैकेज सब क्लास सेम पैकेज नॉन सब क्लास ये सब. जैसे अभी आपने सेम क्लास का एग्जांपल बताया ना वैसे. ये एग्जांपल ही तो बनाई है, इसमें क्या कंफ्यूजन है. एग्जांपल तो है ये. अभी पब्लिक, अच्छा ऐसे समझो. अभी जैसे मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, है ना. डिफॉल्ट के लिए मैंने क्या करा, मैंने वाटर क्लास में एक मेथड बनाया ब्रांड. ठीक है. उसके बाद इसको यूज करा मैंने कहाँ पर, फायर क्लास के अंदर. वाटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ब्रांड मेथड को कॉल कर पाया. ऑल बिकॉज मेथड इज डिफॉल्ट. ये हम बाहर भी यूज कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं. तो हमने एक्सेस कर लिया, खत्म. सर ये सेम पैकेज और सब क्लास हो गई. सब क्लास कैसे हो गया? सब क्लास तो इनहेरिटेंस की चाहिए होगी ना, एक्सटेंड कीवर्ड चाहिए होगा. सब क्लास मीन चाइल्ड क्लास. ओके.
ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। सब क्लास इक्वल्स टू चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये सेम है। तो यहाँ पे चाइल्ड, अरे चला गया, फिर से लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, वाटर क्लास बनाया, उसमें एक मेथड दिया डिफॉल्ट, और उसको एक्सेस किया हमने फायर के अंदर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल कर पाए। तो मेथड डिफॉल्ट है, विद इन द सेम पैकेज है, एक्सेस कर सकते हैं, ये कहीं भी ऑब्जेक्ट बना लो वाटर क्लास का और कॉल करो ब्रांड को, पॉसिबल है। डिफॉल्ट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लास के साथ, वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ। तो हमने ये कर लिया, क्लास के साथ हमने एग्जांपल देख लिया, ये रहा। यहाँ पर डिफॉल्ट में अच्छा काम करता हूँ, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट, जिसमें लिखा तो है यहाँ पे कहीं पर, ये डिफॉल्ट का एग्जांपल था ना ये। ये है प्राइवेट का एग्जांपल, प्राइवेट तो ये प्राइवेट का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने प्राइवेट नाम लगा रखे हैं, प्राइस है और टेस्ट है, और ये दोनों ही एक्सेस हम नहीं कर पाए। रीजन इज सेम, विजिबल नहीं है भाई, क्योंकि वो क्लास का फील्ड है, वो प्राइवेट इज क्लास थिंग, तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या था, पब्लिक। पब्लिक का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया डिफॉल्ट के बारे में, एग्जाम्पल क्या बना के रखे हैं देखो ना। डिफॉल्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे मेथड बनाया ब्रांड, इसको एक्सेस कर लिया विद इन सेम पैकेज, पैकेज भी सेम है, फाइन। दूसरा एग्जांपल ये होता है कि फाइल क्लास विच वाज डिफॉल्ट, नाउ इट इज डिफॉल्ट, सो कैन वी एक्सेस इट आउटसाइड, नो। क्या रहा है, ये रहा। तो मैं ये भी कर लेता हूँ, इस क्लास को भी एग्जाम्पल बना देता हूँ। मैंने आपने शायद थे नहीं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी आप कह रहे हो कि एग्जाम्पल बनाओ, कि एग्जाम्पल बना चुका हूँ ऑलरेडी। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे नॉन सब क्लास हो गई, ये सब क्लास, इसका क्या एग्जाम, मतलब ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली? इनहेरिटेंस में थे आप, यस सर। तो वहां पे मैंने बताया था कि सब क्लास और नॉन सब क्लास क्या होता है, डे वन बिफोर। मैंने कहीं मेंशन किया था, मिल नहीं रहा मेरे को। वहाँ सब क्लास क्या होता है और चाइल्ड क्लास क्या होता है, वो मैंने बताया था ऊपर। दोनों एक चीजें खत्म, इसमें कंफ्यूजन मत रखो। अगर ये डायग्राम कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, पर कंफ्यूज मत हो भाई। लास्ट में उन्होंने बोला कि यार आपने बता तो दिया, लेकिन मैं सब भूल गया, वो सब मत करना। So what happened here? We have a class which is default in nature, and as soon as we try to instantiate it, Java compiler throws an error. It says you cannot use it. It's not even visible. Now, where this class is present, it is present in different package. Let's put the package name as well. So we would be clear where we are using this stuff. This is inside here, and that file class was inside package B. I'll come back to that question what you confused. Maybe I'm getting it. Oh, okay. अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम क्लास, ये विद इन सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास, सेम पैकेज है पर उसका चाइल्ड क्लास है, जो भी क्लास का हम वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमने सब क्लास क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड क्लास है, मतलब हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास बना दिया। सेम पैकेज, नॉन सब क्लास, जो कि इनहेरिटेंस फॉलो नहीं कर रहा, नॉन सब क्लास, दैट इज नो इनहेरिटेंस फीचर, इनहेरिटेंस।
नो चाइल्ड क्लास। यस मनन, स्टिल बताइए, कुछ और डाउट है या अभी भी क्लियर नहीं है? सर बोलिए। सर हम विद इन द पैकेज अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हाँ। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पैकेज एक ही है और हम्म। अलग अलग प्रोग्राम्स में हम एक ऑब्जेक्ट एक क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में सर प्रोटेक्टेड वाला जो एक्सेस मॉडिफायर है वो यूज हो सकता है। बिल्कुल यूज होगा, क्योंकि हमने तो कह दिया प्रोटेक्टेड सिमिलर टू डिफॉल्ट पैकेज, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। और डिफॉल्ट कहीं भी यूज होता है बट इनसाइड द पैकेज, तो प्रोटेक्टेड एक्ट इसको कह सकते हैं ऐसे, इट हैज अ पैकेज लेवल visibility and अच्छा दूध पी लो। outside of package if that class is child of another class. ओके सर, यानी डिफरेंट पैकेज सब क्लास ऐसा कह सकते हाँ, हैं। सब प्रोटेक्ट। क्लास डिफरेंट पैकेज, हाँ उसको भी यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, ये इसका डेफिनेशन है। दूसरे डिफरेंस दूसरे पैकेज में गए और उसका चाइल्ड क्लास होगा। क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया है, बस ऐसे ही पूछते रहो, क्योंकि सोचोगे तो यार समझ नहीं पाओगे। तुम मेरी क्लास में तो डिस्टर्ब करो मेरे को, पूछते रहो, मैं जितने पॉसिबल भी होंगे इसे समझाने की कोशिश करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, वरना फिर कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे। पर क्लास में हाँ मत बोलना जब तक समझ नहीं आता, सीधी बात। और ये तो सोचना मैं कि दूसरा क्या सोचेगा, ऐसा तो सोचना ही नहीं है जब तक जिंदगी में रहना है, तो डेवलपमेंट में करना है तो वो तो दिमाग में लाना है कि यार ऐसे के पूछ लूंगा तो क्या होगा, वो तो भूल जाओ। तो ठीक है भाई, आज तो फिर यही हो पाया, ऑलमोस्ट टाइम इज डन। सो वी जस्ट सॉ एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट का सीन बहुत सिंपल है, विद इन द सेम पैकेज एंड आउटसाइड। पर मैंने एक कंडीशन में छोड़ दिया, थोड़ा सा चेंज करना है, फिर हम आराम से जो ये क्लास था स्नो क्लास, इसका ये कॉलर मेथड एक्सेस कर पाएंगे। अभी तो इशू आ रहा है, हमने क्या करा, एक क्लास बना के, अच्छा इसको लिख लेते हैं साथ साथ ही, एक और इमेज बना देता हूँ फॉर प्रोटेक्टेड। ये क्लास बनाया, और इस क्लास को, ये क्लास है इनसाइड पैकेज ए। अब इसी को हम यहाँ ट्राई कर रहे थे, वी ट्राइड इन मल्टीपल वेज। हमने पैकेज बी देखा, उस पैकेज के अंदर में क्लास टेस्टर था, वहां ट्राई करा, जो कि नहीं चल पाया अल्टीमेटली। स्नो, ये रहा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर विद इन सेम पैकेज वी ट्राइड, वी क्रिएट एक्चुअली चाइल्ड क्लास एज पर दैट थ्योरी, कि अगर आप चाइल्ड क्लास बना दोगे और ट्राई करोगे एक्सेस करने का तो एक्सेस हो जाएगा। तो वी फॉलोड दैट, बट अगेन इट डिडंट वर्क आउट, है ना। सुपर से कॉल हो गया, एज अ सेड इट्स काइंड ऑफ अ चीटिंग, नॉट अ नॉट अ प्रॉपर वे इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर यूजिंग प्रोटेक्टेड। वो दिखना चाहिए कि प्रोटेक्टेड को हमने एक्चुअली यूज किया है एज पर द थियरी। प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, वो आप पे छोड़ दिया मैंने, कि फिगर आउट, कुछ एग्जांपल सर्च करिए नेट पर, देखिए क्या क्या तरीके से ये काम करता है। और स्नो चाइल्ड भी इस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, ये भी स्टिल इनसाइड पैकेज। तो ये भी काम नहीं कर रहा, तो पता करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम लगता है, देखो मिल ही जाएगा सोल्यूशन। कि क्या मिसिंग है इसमें, कि हम एक्सेस नहीं कर पाए प्रोटेक्टेड को। इवन द थ्योरी सेज के एक्सेस हो जाएगा, पर हुआ नहीं। कल हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे फॉर श्योर। और जो टॉपिक रह गया सुपर इन दिस, इसको आप खुद से कवर करिए। एज अ सेट कि मुझे एग्जांपल चाहिए, मोरलेस आपको एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं, तो इसको भी होमवर्क में रख लीजिए। वैसे मैं इसको ऑलरेडी एज होमवर्क दे चुका हूँ, मुझे एग्जांपल्स चाहिए होंगे, सैटरडे को हम मिलेंगे तब ये एग्जांपल्स आप सिस्टम में दिखाइएगा। दैट डिपेंड्स कि ऑनलाइन ऑफलाइन, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर सैटरडे को अगर हमारा मीटिंग होती है वर्चुअली या फिर ऑफिस में, तो मुझे ये सिस्टम में चाहिए आपके, जैसे लास्ट टाइम आप लोग करते आए हो। एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि मैं मजे कर रहा था या ये कर रहा था वो कर रहा था। एग्जाम्पल्स
सुपर के आप, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ लास्ट उसमें, 2 एग्जांपल्स फॉर सुपर, क्योंकि वहां पर आप एक मेथड का एग्जांपल दे सकते हो कि आपने पेरेंट क्लास में एक मेथड बनाया और चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लिया। दूसरा एग्जांपल बनाइए और वहां पर एक वेरिएबल बनाया पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में उस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। छोटा 1 लाइन एग्जांपल होगा, डजेंट मैटर। और दिस के आप एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूजिबिलिटी, 3 to 4 एग्जाम्पल्स फॉर दिस कीवर्ड। आई होप होमवर्क भी क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है इसमें। तो इतना ट्राई करिए और फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ। तो जब ये हो जाए एग्जाम्पल, तब एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूर पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि एडवांस में आप लोग पढ़ते चलोगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी और आप लोग के पास एक्चुअली क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे तो पता होगा कि अच्छा हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो तो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, या फिर क्या करने से ये फिक्स हो जाएगा अगर कोई एरर आ रहा तो तब उसको करेंगे। तो आप कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए, करंट क्लास है या प्रीवियस क्लासेस है, कुछ भी, कुछ और कंसर्न है वो पूछ सकते हैं आप लोग। ऑल 3, विपिन, धीरज, मनन। नो सर। सर ओके धीरज, हाँ जी मनन बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर मैं इक्लिप्स में एक नया जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, हम्म। तो सर इसमें 2 ऑप्शन आते हैं प्रोजेक्ट लेआउट के। अच्छा ठीक है, मैंने कहा न्यू, और बताओ क्या करना है। सर न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट। इसमें है दिख रहा है कहीं, प्रोजेक्ट है बस, सर न्यू जावा प्रोजेक्ट। सर्च कर लेते सर हैं, कोई नहीं, ऐसे भी तरीका है या ना जब प्रोजेक्ट का। अरे आ गया, ठीक है, नेक्स्ट करूँ। यस सर। कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। सर इसमें प्रोजेक्ट लेआउट के 2 ऑप्शन आए सर। प्रोजेक्ट लेआउट, यस सर। इसको ये रहने दीजिए, सेपरेट फोल्डर्स फॉर सोर्सेस। यहाँ सर पे मैं क्या होगा, हाँ बताओ। यस सर, इससे बताइए। जब लिखा है क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर सोर्स एंड क्लास फाइल, सोर्स मतलब ये जो लिख रहे हैं आप, ये सारा सोर्स SRC। का काम है, और जब इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी तो वो अलग बनेगी। तो इसको ऐसे रहने दो, दैट्स द बेस्ट, यू कैन से बेस्ट सूटेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो ये हम जावा फाइल बना रहे हैं वो अलग है और क्लास फाइल अलग है। कंफर्म करना है वो दिखा देता हूँ एक बार को, कोई भी फाइल को ओपन करिए या फिर प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। कैसे पता लगाना कि आपका वर्क स्पेस कहाँ पर है, अगर आपने स्टार्टिंग क्लास फॉलो अप नहीं करी तो डेफिनेटली थिंग्स गॉट मेस्ड अप। प्रॉपर्टी में जाइए, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे एक आइकन है रिसोर्स में जाना, इनकेस अगर आप किसी और ऑप्शन पे हो, रिसोर्स में जाइए, यहाँ पे एक बटन है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे। ये रहा बैच 1 इक्लिप्स वर्क स्पेस, ये रहा अपना प्रोजेक्ट। इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एसआरसी आ रहा है। एसआरसी में हमारा जावा जावा कोड है, कॉम, पैक, एक्सेस स्पेसिफायर, फिर इसके अंदर ए पैकेज और बी पैकेज है ना, ये सारी क्लास बन गई। इनका टाइप क्या है, जावा फाइल। थोड़ा सा पीछे जाके अगर मैं एसआरसी से पिन खोलूँ, कॉम, पैक, एक्सेस, स्पेसिफायर, ए, यहाँ पे गाइस क्लासेस है यहाँ पर। तो ये पिन के अंदर सारी हमारी क्लास फाइल गई है, एसआरसी के अंदर हमारा सोर्स कोड है, तो वही काम वहाँ पे कर रहा है वो। तो उसको छेड़ना क्यों भाई, क्या हो गया उससे, ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, या कुछ और क्वेश्चन है इसके, बोलिए मनन, इसको चेंज सर करना चाह रहे हो क्या। सर पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा और? नहीं करना है क्यों है, उसमें लिखा हुआ है ना कि यूज प्रोजेक्ट फोल्डर एज अ रूट, सोर्स एंड क्लास फाइल, एक ही जगह सब मिक्सअप हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। अच्छा सर, मैं अगर जैसे एक एग्जांपल ऐसे चाह रहा हूँ कि हमने प्रोजेक्ट का नाम डाला है जावा फुल स्टैक लर्निंग, अच्छा ठीक है। ठीक है, और उसके अंदर हमने जैसे डाल दिया कोर जावा, और मैं चाहता हूँ कि हम्म। उसके अंदर मेरी पैकेजेस बने, उसके अंदर क्लासेस वगैरह बने, या जो अच्छा काम तो आपने सेम एक जावा कोर ऐप करके नाम लिया है प्रोजेक्ट का, उसे मैं हाँ, विद इन प्रोजेक्ट चाहता हूँ। तो वो उसके लिए फिर मॉड्यूल्स बनते हैं कि एक मॉड्यूल बनाओ उसके अंदर सारा जावा रखो, दूसरे के अंदर आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो रख सकते हो। क्या उसके अंदर आप एंगुलर कोड रखना चाह रहे हो साथ में। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि मतलब एक प्रोजेक्ट बना के जिस जो एक हेड हो गया और उसके हाँ अंदर हाँ, कोर जावा अलग हो गया, या फिर आप स्प्रिंग बूट बनाएंगे उसका ना ना उसका ना, अलग ऐसा हो होगा ही गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना भी मत कभी। अभी सीख रहे हो ना, सारा चीज सेपरेट रखो, एक ही जगह मत रखो। हर बार तुम्हें नया प्रोजेक्ट बनाना सीखना है और उसको कॉन्फ़िगर करना सीखना है, वो तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना भी। अभी तो हम सिंपल जावा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे ही हमारे जेएसपी सर्वलेट एडवांस जावा खत्म होगा हम हाइपरनेट पिक करेंगे, वहां से हम मैवेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। और मैवेन प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही चीज बना सकते हो। मैं तुम्हारा आइडिया समझ गया कि वहीं पर ही मैं सारा कुछ कर लूँ तो एक्सेस करने में आसानी होगी, पर ऐसा नहीं मतलब सर चलता। कि एक हेड फोल्डर हो गया और उसके अंदर हाँ, मैंने अलग अलग फोल्डर्स में वो सारी चीजें सेपरेट टॉपिक वाइज सेपरेट रख करनी। दिए कि एक हाँ में मैनेज कोर जावा, एक में हाइपरनेट, एक में स्प्रिंग बोर्ड, एक में स्प्रिंग कोर। ऐसा नहीं हो हाँ। सकता। अगर ऐसा करना है तो नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने नए प्रोजेक्ट बनाओगे
आइडिया बनेगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने का, बिल्ड करने का। अभी जब तक कोर जावा और एडवांस जावा कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही पिक करेंगे, जैसे ही हाइबरनेट स्टार्ट करेंगे वहां से हम मैवन पिक कर लेंगे कि प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैवन ही बिल्ड करेगा, मैवन ही रन करेगा, सारा कुछ मैवन हैंडल करेगा। ठीक है, ओके तो सर। वो मत करना कि वो आइडिया है, वो तो समझ लो अभी फालतू आइडिया, उसको मत इम्प्लीमेंट करो, आगे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोर जावा तक ही हम ये बना रहे हैं अभी। उसके बाद जब वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका उसका तरीका अलग होगा। अब वेब प्रोजेक्ट इसके अंदर जा नहीं पाएगा। जैसे हम जेएसपी सर्वलेट स्टार्ट करेंगे ना, तो वो इसके अंदर चलेगा ही नहीं, उसकी अलग ही कॉन्फ़िगरेशंस है। ओके और सर। जब स्प्रिंग बूट बनाओगे तो उसका बिल्कुल अलग ही कॉन्फ़िगरेशन है, सबके अलग है, तो वो एक के अंदर रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ तो वो मत करो, जैसा डिफॉल्ट चलने दो। जब भी नया टॉपिक बनाना है, नया प्रोजेक्ट बना लो। डन। तो धीरज नहीं है, विपिन। विपिन, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एंड? नो सर। ऑल गुड। यस सर। चलो ठीक है। चलो गाइस, ठीक है फिर, जितना मैंने पढ़ाया उतना इम्प्लीमेंट करो। और प्लस जो कल एक्सेप्शनली पढ़ेंगे उसके लिए थोड़ा सा देख लेना। बाकी मैं तो क्लास में कवर करूंगा ही उसको। खुद से कवर करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे पुट अप करने के लिए, और जल्दी हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना कोड जावा और एडवांस जावा का जो पार्ट है वो मैं अक्टूबर में ख़त्म कर दूँ बिल्कुल, कि सब खत्म हो चुका है। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में हम लोग फ्रेमवर्क्स पिक कर लेंगे, और फ्रेमवर्क्स में टाइम स्पेंड ज़्यादा करो, कोर में और फ्रेमवर्क्स में। तो वही आइडिया है, बाकी आप लोग के ऊपर है कि जितनी जल्दी कवर करोगे उतना जल्दी हम